We will just do first few like two questions on the lead code. After that, we'll jump into the session of hypothesis testing. All right. So the question is customers who never order. You're given two tables. First is the table of customers, which is having column name as ID and name. By now, you already know that ID will always be a primary key. Name will be repeated sometimes. Similarly, there's another table which is orders, and this order tables has ID and customer ID in it again. Now, this customer ID that you see here, it's same as this one. It is referencing to this particular ID. So this customer ID is the foreign key in orders table, and the primary key for this customer ID is this ID which is present in the customers table. Okay, and that's what they're saying here. Customer ID is the foreign key refers to ID in the customers table. You have to write a solution to find all customers who never order anything. For example, if this is the customers table, so these are all your customers and these are your orders. Okay, as you can see here, customer ID 3 and customer ID 1 have ordered. So Sam and Joe has ordered. Henry and Max has not ordered. So your answer should be Henry and Max. Okay, that is what is expected. Right. So what we have to do first is check here. कैसे solve करेंगे इसको? Anyone? How would we solve this? आईडी जो है ना कस्टमर के टेबल का वो ऑर्डर के टेबल से कंपेयर करेंगे कस्टमर आईडी के और जो नहीं है वो ऑर्डर नहीं करेंगे इससे. Correct. Right. So all we have to do is we just have to return. So we'll answer ले लेगा मैं, ठीक है? Answer is what? Your customers. Okay, all the customers whose ID is in fact is not in your orders customer ID. Okay, so the ID is correct. Let's just check the panda schema once. Panda schema क्या बता रहा है? Your column names are ID and name, and second one is customer ID. And okay, so what you have to check is you have to get all the customers first. What I'm doing is I'm checking all the customer IDs which are present in the orders customer IDs. Okay, and I want to do a note of that. I don't want those. I want only the ones who are not present in orders. So this will give me the ones which are not present in orders. And this is how I do a filtering on my pandas data frame, right? This one we just need name, right? So what is that name called as? Just name is required here. Okay, asking us to return names like this. Okay, so we just have to return. Let's first print this. Answers में क्या आ रहा है? So I think we don't even have to print it. It's fine. We just need to do and pd dot data frame. What is our data answers? What is our columns is right. Let's see if this works. There's a space here not required. Right. So you get customers. This is returning you empty. Why is it returning you empty? Empty क्यों है? What is there in answer? कंबाइन करना पड़ेगा ना सर दोनों टेबल को. क्या करना पड़ेगा? कंबाइन करना पड़ेगा दोनों टेबल्स को, कस्टमर और Combine ऑर्डर्स को. करना पड़ेगा. मर्ज मर्ज. No, we don't have to combine anything here. I just need values here, right? Combine क्यों करना पड़ेगा?
यहाँ पे एक फिल्टर ही करना है ना हमें। सबसे पहले मैंने क्या किया, कस्टमर आईडी, आई वांट टू फिल्टर ऑल द कस्टमर आईडीज हु आर प्रेजेंट इन दिस ऑर्डर्स एंड आई एम टेकिंग नोट ऑफ दैट। ओके, so I get all the customers who are not present in the orders table. Okay, all the customer IDs who are not present in the orders table. This will give me that, and after that I just have to take name of that particular data frame. इसका आंसर क्या आएगा? What will this return me? This will return me all the customers who are not present in the orders table. Correct? I'll show you. ये देखो, so यहाँ पे print हुआ वो. So what am I printing? I'm printing this particular sentence here, which is all the customers who are not present in the orders. So all the customers are not present in the orders. यही है वो Henry and Max. This is what is expected. So once you filter that, you just create a data frame out of it. Understood? Yes, sir. Okay. All right. Great. समझ में आया सबको? सर एक बार बताएंगे फिर? ओके, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये मेरा कस्टमर आईडी है, ये मेरे कस्टमर आईडीज है। मैं सबसे पहले अगर मुझे पता करना है कि कौन से कस्टमर आईडीज ऑर्डर्स में प्रेजेंट है, तो उसके लिए क्या है, कस्टमर आईडी डॉट इज इन प्रेजेंट इन व्हाट ऑर्डर्स के कस्टमर आईडी में। ये क्या देगा मुझे, ये मुझे सारे कस्टमर्स देगा या फिर कस्टमर्स आईडीज देगा जो ऑर्डर्स के टेबल में प्रेजेंट है। दिस विल in fact give you just true false true false true false. Okay, it's giving a index true false true false. Okay? लेकिन मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आई एम इंटरेस्टेड इन पीपल आर नॉट प्रेजेंट इन दैट टेबल। अगर मेरे पास इज नॉट इन होता तो मैं वो यूज कर लेता, लेकिन इज नॉट इन नहीं है, तो इज इन का उल्टा करना पड़ेगा मुझे। दैट विल गिव मी ऑल द कस्टमर्स हु आर नॉट प्रेजेंट इन द ऑर्डर्स टेबल। How do I get all the customers who are present in orders table? Customer ID जो orders table में present है, this will give me all the customers who are present in customer in the orders table, right? And if I do not of that, that will give me all the customers who are not present in the customer in the orders table. वही किया यहाँ पे, लेकिन this will give me what, true false true false true false। कैगल में कॉपी करके देखो आप लोग बाद में, you can just separate this out। पहले इसको देखो आंसर क्या आ रहा है, उसके बाद में you just take customers, because I want all the customers who are not present in that. Basic filtering of pandas data frame, right? यस सर। करेक्ट, pandas data frame ऐसे ही filter करते हैं ना हम लोग, यस सर। filtering सर pandas data frame। नॉट इन होता नहीं कि नहीं, यहाँ पे लेना नहीं है? नहीं होता ना, हमें नॉट इन करने के लिए हमें ऐसे टिल्डा डालना पड़ता है, नॉट वाला। दिस ओके विल गिव मी नॉट। करेक्ट। यस सर। ओके, तो ये तो मुझे डेटा फ्रेम दे देगा इतना, ये तो मेरा डेटा फ्रेम आ गया, लेकिन मुझे पूरा डेटा फ्रेम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नेम्स चाहिए। तो उसका नेम कॉलम ले लिया मैंने और उसके वैल्यूज ले लिए, क्योंकि मुझे वापस एक डेटा फ्रेम बना के रिटर्न करना है इसलिए। ओके, so this is the answer, which is nothing but a list of names, and this is the column name, because इस तरह का टेबल हमें बना के रिटर्न करना है। ओके, यस we सर। need the, yeah, we need the table name, we need the column name as customers, और बाद में इसके वैल्यूज। सो ये वैल्यूज आ गए और यहाँ पे कॉलम का नाम आ गया। अंडरस्टूड एवरीवन? ऑलराइट, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। जस्ट डू दिस, डिपार्टमेंट हैज सैलरी। ओके, सो टेबल क्या बोल रहा है ये, कॉलम डेटा क्या है यहाँ पे। सो वी हैव टेबल विच इज एम्प्लॉई
और एम्प्लॉय टेबल में यू हैव दिस कॉलम्स. कॉलम इज आईडी, नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी. ओके. और इसमें आईडी इज योर प्राइमरी की. दिस इज योर एम्प्लॉय टेबल. यू हैव डिपार्टमेंट टेबल. ओके. डिपार्टमेंट टेबल में आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी और ये नेम है. ये जो आईडी है दिस गोज इन एज अ फॉरेन की हियर. ओके. एम्प्लॉय के टेबल में डिपार्टमेंट का नाम अगर आपको पता करना होगा तो इसके लिए आपको इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा यूजिंग दिस डिपार्टमेंट आईडी and this ID. It will give you the name of department also in the same data frame. Okay, but you have two different tables right now. One is employee and second one is department. The question is write a solution to find employees who have highest salary in each of the department. Okay, employees के नाम लेके आओ जो हर एक डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा सैलरी है उनकी. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल ये अगर टेबल है आपका, एम्प्लॉय टेबल इज जो, जिम, हेनरी, सैमन, मैक्स. These are their salaries. Okay. These are the department IDs. Okay. तो हमारे पास दो डिपार्टमेंट्स है, आईटी और सेल्स. आंसर क्या करना है आपको? आईटी में किसकी सैलरी सबसे ज्यादा है, सेल्स में किसकी सैलरी सबसे ज्यादा है, और फिर से आईटी क्यों है यहाँ पे? ओके, दोनों की सैलरी सेम है इसीलिए दो बार आ गया ये. ठीक है. तो ये आईटी है, ये आईटी है, दोनों में 90,000 है. लेकिन एक और है जो आईटी में, हु इज इन आईटी, जो इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आईटी, राइट, डिपार्टमेंट आईडी 1. लेकिन वो आउटपुट में नहीं है प्रेजेंट बिकॉज हिज सैलरी 70,000 एंड वी ओनली वांट द मैक्स सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट. तो सेल्स में किसकी मैक्सिमम सैलरी है, आईटी में किसकी मैक्सिमम सैलरी है, उन सबके वैल्यूज चाहिए हमें. ठीक है. तो ये हमारा डिपार्टमेंट टेबल है और डिपार्टमेंट टेबल में सैलरी किसकी सबसे ज्यादा है वो चाहिए हमें. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एनी गेसेस, एनीवन वांट्स टू गिव इट अ ट्राई? सर पहले टेबल लेफ्ट ज्वाइन ज्वाइन करना कर सर. सकते हैं वो, और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे तो बोले सैलरी मिलेगी ना डिसेंडिंग ऑर्डर. तो पहले हम डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय टेबल ज्वाइन करेंगे, फिर ग्रुप बाय हाँ करेंगे. किस हाँ. पे ग्रुप बाय, किस पे करेंगे? और ये डिपार्टमेंट में ग्रुप बाय करेंगे, नहीं ग्रुप बाय उस पे नहीं, सैलरी पे करेंगे. नहीं सर, डिपार्टमेंट से करेंगे. नहीं ग्रुप बाय हम लोग डिपार्टमेंट से करेंगे. ओके. और आगे क्या होगा उसके, मैक्सिमम सैलरी कैसे निकलेगी उससे? मैक्स यूज करना पड़ेगा मुझको. ठीक है, चलो एक एक करते हैं. सबसे पहले लेट्स मर्ज दोस टू टेबल्स. ठीक है. तो उसको हम लोग फ्लैट टेबल बोल देते हैं. ठीक है. सो फ्लैट टेबल में हम लोग मर्ज करते हैं. सो हमें मर्ज क्या करना है, डिपार्टमेंट, लेट्स जस्ट मर्ज एम्प्लॉय विद द डिपार्टमेंट. ठीक है. एम्प्लॉय डॉट मर्ज, क्या करना है हमें, हाउ डू वी मर्ज इट, इनर जॉइन. लेफ्ट ऑन क्या है, लेफ्ट की का नाम क्या है एम्प्लॉय के, डिपार्टमेंट आईडी. करेक्ट. ये डिपार्टमेंट आईडी है की वो, लेफ्ट ऑन इज डिपार्टमेंट आईडी, राइट ऑन इज जस्ट आईडी. लेट्स सी यहाँ पे हमें क्या मिलता है. फ्लैट टेबल में हमें एक फ्लैट टेबल मिलना चाहिए जिसमें एम्प्लॉय नेम, आईडी, डिपार्टमेंट और उसका डिपार्टमेंट का नाम भी आना चाहिए पूरा. सर डिपार्टमेंट का नाम रह गया. एम्प्लॉय डॉट मर्ज, मिसिंग राइट. ओके सॉरी, डिपार्टमेंट ही रह गया, डिपार्टमेंट. You need pandas data frame instead of class none type. That's fine. रिटर्न का बोल रहे हैं वो. ठीक है, ये प्रिंट हो गया हमारा. ठीक है. तो ये प्रिंट है हमारा आईडी एक्स, ये मतलब ये एम्प्लॉय आईडी है, ये एम्प्लॉय का नाम है, ये सैलरी है एम्प्लॉय की, ये डिपार्टमेंट आईडी है, ये डिपार्टमेंट का आईडी है और ये डिपार्टमेंट का नाम है. तो ये हमें मिल गए वैल्यूज यहाँ पे. ठीक है. ये एक्स इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये आईडी और ये आईडी सेम नाम है. तो उसने क्या किया, जो लेफ्ट है उनको अंडरस्कोर एक्स बोल दिया और जो राइट है उनको अंडरस्कोर वाई बोल दिया, ताकि देयर इज नो कंफ्यूजन, देयर आर नो रिपीटेड नेम्स. ठीक है.
तो ये आईडी जो अंडरस्कोर वाई है, दिस इज डिपार्टमेंट आईडी, और ये डिपार्टमेंट आईडी और ये डिपार्टमेंट आईडी सेम हो गया, 1 1 के साथ मैच हो गया, ये आईटी यहाँ पे आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, वी वांट टू गो डिपार्टमेंट नेम वाइज, राइट। सो डिपार्टमेंट नेम जो रहेगा उसके ऊपर हमें ग्रुप बाय करना है, एंड वी वांट टू गेट व्हाट इज द मैक्सिमम सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट। ओके, नाउ लेट्स डू दैट। दिस इज माय फ्लैट टेबल डॉट ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्या करना है मुझे, व्हाट इज द कॉलम ऑन विच आई शुड ग्रुप बाय हियर, ये मेरा आउटपुट होगा। तो डिपार्टमेंट आईडी, वाई नेम वाई, नेम अंडरस्कोर वाई। वाई। डिपार्टमेंट आईडी पे भी कर सकता हूँ, नेम पे भी वाई, दोनों का आंसर सेम ही आएगा मेरा। ठीक है, सो क्योंकि हमें आउटपुट में डिपार्टमेंट का नाम चाहिए, सो लेट्स जस्ट कीप इट नेम। ओके, ऑलराइट। बाय करेंगे तो आईटी 2 बार नहीं आएगा ना, एक ही बार आएगा, और आउटपुट में इन्होंने आईटी 2 बार दिखाया है ना। नहीं, आउटपुट कहाँ निकाला हमने अभी तक, आई एम जस्ट ग्रुपिंग बाय राइट नाउ। आईडी भी सेम ही, आईटी का एक ही है ना आईडी, अगर मैं आईडी पे भी करूंगा तो एक ही बार आएगा फिर भी। ठीक है, आई जस्ट वांट टू गेट कि हर एक डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी कितना है, अभी उतना ही निकालना है मुझे। ठीक है, सो सो दिस इज द सैलरी डॉट मैक्स। ये मुझे क्या देगा, दिस विल गिव मी इन एवरी डिपार्टमेंट सैलरी मैक्सिमम कितना है, करेक्ट। यस, so this is what it is giving me। आईटी में सैलरी 90,000 इज मैक्सिमम, सेल्स में सैलरी 8,000 इज मैक्सिमम। तो इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं अभी। ठीक है, so दैट मैं ज्वाइन कर सकूँ। डेटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, एंड एज pd डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया मैंने। ठीक है, और डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद में वी हैव टू डू रीसेट इंडेक्स ऑन दिस। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज इसका इंडेक्स जो है दैट विल बी नेम। सो इसका वैल्यूज देख लेते हैं क्या है, प्रिंट प्रिंट करते हैं एक बार। हम्म, बोल रहा है ये रन टाइम, ओके कुछ तो मैच नहीं हुआ। ठीक है, तो ये मेरा टेबल आ गया डेटा फ्रेम। आई नीड टू रीसेट इंडेक्स ताकि नेम जो है कॉलम बन जाए। डॉट रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स, रीसेट इंडेक्स मुझे डेटा फ्रेम पे करना है। तो इसको फिर से रन करते हैं, आई जस्ट शो यू द टेबल राइट नाउ। तो ये मेरा टेबल आ गया अभी, जिसमें नेम इज डिपार्टमेंट और सैलरी ये है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट डिपार्टमेंट वाइज मैक्स। ठीक है, so दिस इज डिपार्टमेंट वाइज मैक्स। अभी ये फ्लैट टेबल है, ये डिपार्टमेंट वाइज मैक्स है। फ्लैट टेबल डॉट मर्ज व्हाट ऑन डिपार्टमेंट टाइप मैक्स। ओके, ओ सॉरी, मर्ज नहीं कर रहे। तो आई वांट टू चेक सैलरी भी सेम रहना चाहिए, ये भी सेम रहना चाहिए, दैट इज व्हाट माय फिल्टर शुड बी। ओके, सो मेरा जो फ्लैट टेबल है उसमें दो वैल्यूज चेक करनी पड़ेगी मुझे। सबसे पहली वैल्यू, नेम भी सेम रहनी चाहिए और सैलरी भी सेम रहनी चाहिए, दैट विल बी माय मैक्सिमम सैलरी पर्सन। सो यहाँ पे दो ऑप्शन है मेरे पास। सबसे पहला ये है कि मैं यहाँ पे एक लूप लगा दूं, फॉर लूप इस पूरे टेबल पे, which will be a little expensive work to do because that will be um, what can we do, I can do a for loop here on this table, and can just check each of those values. Else I think there's a way to check tuples। okay, so इसके फ्लैट टेबल में कौन से कॉलम्स है हमारे, we have name underscore y, और सेकंड कॉलम था हमारा सैलरी।
the way to compare the tuples actually. Just want to get that particular thing. ये टपल है ना, ये टपल हमें जैसे कि वैसे कंपेयर करना पड़ेगा इसके साथ में. Oh, or else, yeah, better way, the best option. फ्लैट टेबल है, इसको मैं मर्ज कर देता हूँ इस टेबल के साथ में. But this time I'm going to merge on two keys. I'm going to merge on name, department name, and I'm going to merge on the salary, both. So this is my department wise max. How? This should be here, and this time left on, just to on here. On, because दोनों में column name same है. I want to join it on name underscore y and salary. दोनों में join कर दूंगा. Finally, this should be my answer. हेलो Yes, सर, वो नेम का कॉलम तो अलग है ना, पर मतलब नेम अंडरस्कोर वाई और नेम अंडरस्कोर एक्स होगा ना? correct. Name underscore y में क्या है? Department का name है, right? यस. डिपार्टमेंट के नेम पे हमें ज्वाइन करना है और सैलरी पे ज्वाइन करना है, ओके, हाँ. करेक्ट. इसीलिए सो व्हेन वी सी दैट, ओके, यहाँ पे क्या रह गया अभी, राउंड ब्रैकेट निकालना भूल गया था मैं. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी गेट. हमें मिला जिम, जिसकी सैलरी थी 90,000, उसका डिपार्टमेंट है 1, आईटी. मैक्स सैलरी 90,000, अगेन डिपार्टमेंट आईटी. हेनरी सैलरी 80,000, डिपार्टमेंट सेल्स. वी वांट 3, these are the 3 that we get. ओके, ये सारे तो कॉलम्स चाहिए नहीं हमें. हाउ मेनी कॉलम्स डू वी नीड? वी जस्ट नीड 3 कॉलम्स. वो कॉलम्स कौन से हैं हमारे जो हमें चाहिए? वो सबसे पहले तो हमें चाहिए डिपार्टमेंट का नाम, विच इज योर नेम अंडरस्कोर वाई. दूसरा कॉलम कौन सा चाहिए हमें? एम्प्लॉय का नाम, विच इज नेम अंडरस्कोर एक्स. उसके बाद में कौन सा चाहिए हमें कॉलम? सैलरी, विच इज जस्ट सैलरी अगेन. दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड. So just check if this return works. It won't work क्योंकि ये कॉलम के नाम अलग अलग है यहाँ पे. But let's just see कि do we get what is at least in the data. क्या बोल रहा है ये? Key error. What is happening here? Yeah, this should be a list of list. So you get everything correctly. Only problem is this department, और ये जो नाम है, this names has to be renamed. Okay, so I'll just get this into answer. So this is my answer. And when I return, just return answer dot rename. I want to rename the columns, right? Columns is equal to old name क्या है? Name underscore y. नया name क्या देना है इसको? Department. ये वाला नाम देना है इसको. So that is the old name of the column. I'm renaming the columns here. Second is name of x. यहाँ पे क्या नाम देना है? Department. Not department. This is name x. Name x. Why is it not copying? Type कर देता हूँ मैं. Name underscore x को rename करना है कौन से नाम से? Employee के नाम से. Okay. और salary should be renamed as capital salary. So this is what is expected. आंसर लिया मैंने, आंसर को सिर्फ रीनेम किया, कॉलम से रीनेम किया. एवरीथिंग एल्स रिमेन्स एज इट इज, नथिंग चेंज्ड. ओके, so this is expected and this is the answer. सबसे पहले क्या किया हमने? फ्लैट टेबल निकाला, दोनों को मर्ज किया. फ्लैट टेबल निकाला ताकि हमें सारी इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टेबल में मिल जाएगी. उसके बाद में डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी कितनी है, उसके बाद में डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी निकालने के बाद में फ्लैट टेबल के साथ में फिर से मर्ज किया. इस बार क्या किया हमने? जब ज्वाइन किया, मर्ज किया, तब हमने मर्ज दो कीज पे किया. एक है नेम की और दूसरा है सैलरी पे. दोनों पे मर्ज किया और दोनों के मर्ज के बाद में हमें आंसर मिल गया. यहाँ पे हमने सिर्फ ये वेरिएबल्स लिए जो हमें इंपॉर्टेंट लगने वाले थे, जो लगने वाले हैं.
So that is how you filter the columns. करेक्ट? तो ये आपका आंसर आ गया. आंसर में कॉलम्स को रीनेम करने की जरूरत थी, तो दैट्स व्हाई रीनेम द कॉलम्स. या क्वेश्चंस? समझ में आया सबको? ओके, ऑलराइट, डोंट वरी, इसका आंसर मैं शेयर कर दूंगा बाद में. ठीक है, I'll share the recording also. As the Shraito people are not able to join, I can understand that. Okay, let's start with today's session. So today we are going to talk about hypothesis testing. It's one of the most important topics for data scientists, especially in the interviews, also for the data analyst in the interviews. So hypothesis testing, what we try to do is we do some experiments. और जब हम लोग experiments run करते हैं या फिर perform करते हैं, we want to also quantify the results. That is, हमारा जो experiment था, was it successful or was it a failure? If it was successful, how successful it was? If it was a failure, how badly did we feel? और जो एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, दीज आर यूजुअली ए-बी टेस्ट्स. मतलब आपके पास दो ग्रुप्स क्रिएट किए जाएंगे. एक ग्रुप को आप एक तरह का मेडिसिन दोगे और दूसरे ग्रुप को आप दूसरे तरह का मेडिसिन दोगे. आफ्टर दैट यू let the groups go on with their life, and after few days you check कि कौन से ग्रुप में मेडिसिन का असर हुआ है. That will basically tell you which medicine has worked. That's the most crude way of putting it. Okay, this is the procedure that I told you just now. This is called as controlled experiment. Okay, तो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, दो ग्रुप क्रिएट किए जाते हैं. एक होता है आपका कंट्रोल ग्रुप. कंट्रोल ग्रुप का मतलब होता है नथिंग इज चेंजिंग इन दैट ग्रुप. ओके, कंट्रोल ग्रुप का मतलब होता है नथिंग इज चेंजिंग इन दैट ग्रुप. उसमें कोई भी चेंज नहीं किया आपने. दूसरा होता है ट्रीटमेंट ग्रुप. ट्रीटमेंट ग्रुप का मतलब होता है जहां पे आप ट्रीट कर रहे हो किसी एक चीज से. ऑलराइट, तो ऐसे दो ग्रुप बनाने, एक तो कंट्रोल ग्रुप और दूसरा ट्रीटमेंट ग्रुप. और उसके बाद में एक्सपेरिमेंट रन करना है. कंट्रोल ग्रुप के साथ में एक एक्सपेरिमेंट रन करना है और सेम एक्सपेरिमेंट ट्रीटमेंट ग्रुप के साथ रन करना है. सिर्फ चेंज इतना करना है कि एक कोई तो वेरिएबल चेंज होगा. लेट्स से आपको कोई मेडिसिन टेस्ट करना है, एंड दिस मेडिसिन इज अबाउट डायबिटीज. और आपने दो ग्रुप्स लिए. ग्रुप ऐसे लिए आपने कि दोनों तरफ एक जैसे लोग हैं. ऐसे नहीं कि एक तरफ डायबिटिक लोग हैं और एक तरफ नॉन डायबिटिक लोग हैं और आप डायबिटीज की मेडिसिन टेक कर रहे हो. वैसे नहीं करना है. दोनों तरफ एक जैसे लोग हैं. इमेजिन करो दोनों तरफ एक जैसे लोग हैं. इमेजिन करो दोनों तरफ एक ही लोग हैं, ट्विन्स है, ऐसे इमेजिन कर सकते हो आप. ठीक है, तो एक ग्रुप को आपने गोली के नाम पे सिर्फ प्लेसिबो दिया. मतलब आपने बोला कि ये गोली है, लेकिन वो गोली है नहीं. एक्चुअली दैट इज नॉट अ मेडिसिन, दैट्स जस्ट अ शुगर पिल और दैट्स जस्ट अ प्लेसिबो. और दूसरा ग्रुप को आपने एक्चुअल में मेडिसिन दिया. उसके बाद में कुछ दिन पास हो गए एंड यू चेक्ड डायबिटीज का अमाउंट कैसा है दोनों के बीच में. अगर दोनों ग्रुप के बीच में अगर देर इज अ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ वॉट एवर डायबिटिक लेवल वॉट एवर द measures are used to check the diabetes, if there is a difference, that means the medicine has worked. If there is no difference, that means the medicine has not worked. एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से एक ऐसा एक्सपेरिमेंट रन किया जा रहा है जिसमें बोला जा रहा है कि स्टूडेंट्स को सेशंस के पहले अगर कॉफी दी जाए तो वो सेशन में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं. ये प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा. हमारे बैच में जितने स्टूडेंट्स है, लेट्स से वी हैव 15 8 16 स्टूडेंट्स. उसमें से I'll tell 8 students randomly. I'll not tell कि ये स्टूडेंट ने करना चाहिए. I'll randomly say 8 students को you drink coffee before the session, and other 8 students I'll say do not drink coffee before the session.
After that, I'll run this experiment for 7 days. Same students will be given coffee before the session, and the other group will be given coffee, will not be given coffee before the session. एक हफ्ते के बाद में I'll take a test and I'll find out that who is scoring better. My assumption is that the student who are scoring better means they are concentrating more. All right. Now, if the students who are given coffee before the session are scoring better than the students who are not given coffee before the session, that means giving coffee before the session improves the uh, concentration in the session. That's just the hypothesis. That's just the experiment that I wanted to run, and this is how I would run the test, run the experiment. All right. एक और एग्जांपल, एक नया मेडिसिन आया. It's just a gel which you apply on burns, or whenever there's a burn patient in the hospital, they will give this gel, and randomly if someone else comes in, they'll not give the gel. They just say let it be, let it uh, don't treat that particular burn, and let it be as it is, don't do anything with that. All right. Now after 10 days, when you bring both the patients into the hospital and check दोनों का burn का level कितना है, has the burn healed or not, and if you found out कि जिन लोगों को आपने जेल दिया है और जिन लोगों को आपने जेल नहीं दिया है, उन दोनों के बीच के, या फिर उन दोनों के बर्न्स इक्वली हील हुए हैं, इसका मतलब वो जेल देने का कुछ फायदा ही नहीं था. दैट जेल इज बेसिकली यूजलेस बिकॉज दैट burn could have healed even without the gel. Yes or no? Are you guys understanding what I'm trying to say? Okay. Yes. Right. So this is how the controlled experiments are done. The best case scenario is where we can do some simulations. ठीक है, जैसे कि इमेजिन करो कि कुछ कैंसर पेशेंट्स हैं, और अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी होती, तो मैं उन कैंसर पेशेंट में से कुछ कैंसर पेशेंट को एक तरह का मेडिसिन देता और कुछ को एक तरह का मेडिसिन देता, एंड आई विल लेट दैट पर्टिकुलर सिनेरियो रन. अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि सिनेरियोस जब रन होते हैं तब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने दिमाग में क्या करते हैं, ही जस्ट creates various simulations and tries to find out in which scenario would certain things work and in which case scenario certain things would not work. Similarly, if I was having that power, I would what I would do is I would just create such scenarios जहाँ पे एक सिनेरियो में मैं someone एक पेशेंट को दूंगा एक तरह की दवाई, और एक पेशेंट एक सिनेरियो में मैं दवाई नहीं दूंगा. ओके. उसके बाद में इन फ्यूचर अगर मुझे पता चलता है, अगर इफ आई हैड दैट पावर दैट इन फ्यूचर आई विल बी एबल टू फाइंड आउट कि ये दवाई इनके ऊपर चल रही है, तो राइट नाउ आई कैन prescribe the medicine to those people who are already having cancers, right? But that is not possible. We cannot run the simulations like this. इसीलिए क्या होता है, because you cannot do simulations like this, you try to do something much closer to it. You try to do a control experiment जहाँ पे आप randomly लोग assign करते हो, और उसके बाद में कुछ लोगों को आप मेडिसिन देते हो और कुछ लोगों को आप मेडिसिन नहीं देते. That is the uh, best thing we can do other than doing the simulations. But simulations are not possible, as you can imagine. You cannot run parallel universes like that. Correct? So that's why we do this control experiment. अभी जब हम लोग कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं. जो हमें हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर हमें एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, वो सब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए वो डिसाइड करने का ऑप्शन हमारे पास में होता है. आइडियली क्या करना चाहिए मुझे, मुझे अगर टेस्ट करना है इफ सर्टेन थिंग्स वर्क ऑन मी और नॉट, आई विल try that certain thing on myself, and then I'll try to not have that certain thing, that medicine on myself, mm, on my identical twin. That's the second best approach apart from the parallel universe. Even that is not possible most of the times. So what you will do is you will just check कि ठीक है किनका age group किसका है. So what you can do is just filter the people based on the age groups. ठीक है, same age group के लोग, same gender के लोग, same ethnicity के लोग. ठीक है, ये ऐसे 100 लोग ले लो, और उन 100 में से 50 लोगों को यू गिव सर्टेन मेडिसिन,
and 50 people don't give the medicine, and then you can do that control experiment. Okay, where the one who are getting the medicine will be called as a treatment group, the one who are not getting the medicine is called as a control group. कंट्रोल ग्रुप क्यों? क्योंकि उनमें कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग. ट्रीटमेंट ग्रुप क्यों? क्योंकि उसमें कुछ चेंज कर रहे हैं हम लोग. ओके, नाउ बहुत बार क्या होता है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको खुद को नहीं पता होते हैं कि वो कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है. आर दे पार्ट ऑफ द कंट्रोल ग्रुप और आर दे पार्ट ऑफ अ ट्रीटमेंट ग्रुप? वी कैन डू दैट, राइट? अगर मैंने किसी को प्लेसिबो दे दिया, नहीं, दो ग्रुप्स है, एक ग्रुप को मैंने प्लेसिबो दिया और एक ग्रुप को मैंने एक्चुअल मेडिसिन दिया. दोनों को लग रहा है कि मेडिसिन दिया जा रहा है. हो सकता है दोनों को लग रहा है प्लेसिबो दिया जा रहा है, बट सब्जेक्ट्स डू नॉट नो कि वो कौन से ग्रुप में है प्रेजेंट. ऑल राइट, इफ द सब्जेक्ट्स डू नॉट नो वो कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंगल ब्लाइंड स्टडी. ब्लाइंड मतलब द सब्जेक्ट्स आर ब्लाइंडेड, उनको नहीं पता कि वो कौन से ग्रुप में है, वेदर दे आर पार्ट ऑफ अ ट्रीटमेंट ग्रुप और दे आर पार्ट ऑफ अ कंट्रोल ग्रुप. उन सब्जेक्ट्स को ही नहीं पता वो कौन से ग्रुप के पार्ट है. अगर ये पॉसिबल हो तो ये कर सकते हैं हम. करेक्ट, वी कैन गिव सम प्लेसिबो और वी कैन गिव सम शुगर पिल्स and say that you are getting a medicine. Why do we do that? Because sometimes what happens is the act of taking a medicine itself can make the patient feel better, and we want to test if the medicine really works. करेक्ट, अगर सिर्फ मेडिसिन देने का नाम सुनते ही कुछ पेशेंट्स ठीक हो जा रहे हैं वर्सेस वो मेडिसिन देने से ठीक हो रहे हैं, अगर ये मुझे चेक करना है तो मुझे प्लेसिबो देना पड़ेगा उसके लिए. You won't believe, but there have been cases where people undergo fake surgeries just to feel better. उनको लगेगा कि there's something happening with them. They'll undergo some fake surgeries, and because of that, just a fake surgery, it's not even a surgery. They'll just do some cut and they'll just sew it up, and then they'll say the patient, now you're good, go. The patient will actually start feeling better about it because they feel that whatever was happening to them has been treated by certain surgery or by certain medicine. Okay, so the act of doing something may alter the physiology or may alter the way the person is going to take care of himself. That's why the placebo effect is always used to do the medical studies. Most of the times, most of the medical or medicines are tested using this placebo effect or using the placebo. Now, सिंगल ब्लाइंडेड में पता नहीं होता एक्सपेरिमेंट जिनके ऊपर हो रहा है कि वो कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है, कंट्रोल ग्रुप में या फिर ट्रीटमेंट ग्रुप में. लेकिन रिसर्चर्स को पता होता है कि जब पेशेंट उनके पास आ रहा है तो वो पेशेंट कौन से ग्रुप का है. इज ही अ पेशेंट ऑफ कंट्रोल ग्रुप और इज ही अ पेशेंट ऑफ ट्रीटमेंट ग्रुप? अभी अगर रिसर्चर को पता है और ये रिसर्चर्स लास्ट 10 साल से एक मेडिसिन पे काम कर रहे हैं, तो उनका इंक्लिनेशन रहेगा कि जो ट्रीटमेंट ग्रुप वाले लोग हैं उनको बोला जाए कि ये मेडिसिन की वजह से आप ठीक हो रहे हो, या फिर वो अपने रिसर्च पेपर में डाल सकते हैं कि क्योंकि आपने मेडिसिन लिया है, फिर क्योंकि ये मेडिसिन लिया इसलिए ये लोग ठीक हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 10 साल इन्वेस्ट किए उसमें, उनको फंड्स आ रहे हैं कहीं से, राइट. एंड इट्स वेरी मच पॉसिबल कि ह्यूमन बायस इसमें इंट्रोड्यूस हो सकता है, राइट. इसीलिए देर इज वन मोर ऑप्शन फॉर दैट विच इज द डबल ब्लाइंडेड टेस्ट. डबल ब्लाइंडेड टेस्ट में क्या होता है, आपका जो कंट्रोल ग्रुप है और आपका जो ट्रीटमेंट ग्रुप है उनको तो पता नहीं होता कि वो कौन से या फिर द पीपल हु आर इन दीज ग्रुप डोंट नो इन विच ग्रुप दे आर राइट नाउ. और रिसर्चर्स को भी नहीं पता होता है कि उनके पास जो आदमी आया या फिर द पर्सन हु दैट रिसर्चर इज सीइंग बिलोंग्स टू अ कंट्रोल ग्रुप और अ ट्रीटमेंट ग्रुप. वो बस अपने फाइंडिंग्स लिख देंगे. उसके बाद में देयर बी अ थर्ड पार्टी हु इज गोइंग टू रीड दिस फाइंडिंग्स एंड देन दे विल बेसिकली डिसाइड कि ये मेडिसिन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड बेसिक, द डबल ब्लाइंडेड टेस्ट. It's very difficult to do,
but there are some companies or there are some research labs which are capable of doing the double blinded studies. Let me just pause here. Any question in any terms that we have seen till now? Hello. Yes. Sir, why we need double blinded studies? डबल ब्लाइंडेड इसीलिए क्योंकि रिसर्चर को भी नहीं पता कि जो उनके पास में पेशेंट आया है वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है. इज ही बिलोंगिंग टू अ ट्रीटमेंट ग्रुप और इज ही बिलोंग टू अ कंट्रोल ग्रुप. और जो पेशेंट है उनको भी नहीं पता कि वेदर दैट पेशेंट बिलोंग्स टू अ कंट्रोल ग्रुप और अ ट्रीटमेंट ग्रुप. That's why both are blinded. Researcher are also blinded and the subjects are also blinded. That's why it's a double blinded test or double blinded study. ओके सर, बट उससे कुछ डिफरेंस तो नहीं पड़ेगा ना, मतलब टेस्टिंग पे? टेस्टिंग पे डिफरेंस नहीं पड़ेगा. ओनली थिंग इज जो रिसर्चर का बायस था. रिसर्चर्स अभी अगर कोई 10 साल से किसी मेडिसिन पे काम कर रहे हैं और अगर उनको पता है कि इस पेशेंट को ये मेडिसिन दिया जा रहा है तो उनको लगेगा कि ये मेडिसिन की वजह से ठीक हो रहे हैं या फिर ये मेडिसिन की वजह से ठीक हो रहे हैं. ऐसा अगर मैं इसे डाल दूं मेरी रिपोर्ट में तो हो सकता है मेरा मेडिसिन जल्दी अप्रूव हो जाए. करेक्ट. तो ऐसा हो सकता है ना. और पीपल ट्राई टू डू दैट इन क्योंकि 10 साल इज नॉट अ शॉर्ट टर्म. राइट. अगर कोई 10 साल से काम कर रहा है किसी मेडिसिन के ऊपर और उनको पता है कि ये मेडिसिन नहीं काम करेगा या फिर अगर ये पर्टिकुलर स्टडी में अगर फेल हो गए या फिर ये टेस्ट में हम लोग फेल हो गए तो हमारे फंड्स बंद हो सकते हैं, हमारा लैब बंद हो सकता है. अगर ऐसी सिचुएशन हो तो दे विल ट्राई टू लाई. रिसर्चर्स बेसिकली ट्राई टू लाई ऑन दैट सेइंग कि ये मेडिसिन काम कर रहा है. ओके. सो दैट्स व्हाई Okay. इफ पॉसिबल डबल ब्लाइंडेड स्टडी की जाती है. लेकिन डबल ब्लाइंडेड स्टडी इज डिफिकल्ट बिकॉज उसके बाद में वो अप्रूवर्स कौन है. दे ऑल्सो हैव टू बी इक्वली क्वालिफाइड टू मेक कमेंट्स. सो इट बेसिकली इज a little bit difficult what I'm trying to say. सिंगल ब्लाइंडेड स्टडी होती है, बहुत बार होती है, बहुत सारे लोग करते हैं. लेकिन उसके जो रिजल्ट होते हैं those are trusted but not as much trusted. If you want to take example, we have seen many examples during the corona, right? There were medicines that were said are going to work, but what was the proof that they are going to work? अगर आपने वो मेडिसिन नहीं भी दिया होता फिर भी वो पेशेंट ठीक हो जाते हैं. Was there any study done? That's what I'm trying to say, right? If there was a study done, then the study must be properly documented. Only then you can say that this medicine works or this particular medicine does not work. You cannot blindly say कि ये मेडिसिन क्योंकि इस मेडिसिन में ये इंग्रेडिएंट्स है तो ये मेडिसिन काम करेगा, क्योंकि इस मेडिसिन में ये इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो ये काम नहीं करेगा. यू कैनॉट ब्लाइंडली से दैट. यू नीड टू बैक इट अप विद द डेटा. एंड in pandemic we have seen many medicines that came out like that. Yeah, I don't want to name names here because that's not required. But what is important here is whenever you read about a report, whenever you read about a study, you need to be understanding कि ये experiment किया कैसे गया है. Was it experimented on 1,000 people? Was it experimented on 100 people? You have to understand that controlled experiment कैसे किया गया. Was it really a controlled experiment? Was it really a blind study? Was it really a double blind study? Okay, so these are some important things that you as a data scientist would be expected to get answers for. या फिर अगर आपको कोई स्टडी करनी है तो मे बी यूल हैव टू क्रिएट दिस फ्रेमवर्क कि ये स्टडी करना है हमें तो ये स्टडी के अंदर these will be the patients, these will be the researchers, and you can basically uh, help in creating that experiment. You won't be doing that experiment per se because you don't have the expertise, right? You're not doctors to do the medical experiments, but you can help in understanding the data. You can help in facilitating the experiments in such a way that there are no bias in the results, so that the results are correctly quantified. More questions?
सर फिफ्थ पॉइंट समझ में नहीं आया, मतलब वो फिफ्थ वाला। या सो फिफ्थ पॉइंट का मतलब है जितना सिमिलर रहेंगे दोनों ग्रुप्स एक्सपेरिमेंट के पहले उतना अच्छा है मेरे लिए। मतलब अ, अगर मुझे कोरोना का कोई दवाई टेस्ट करना है तो एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स रहेंगे जिनको जिनके ऊपर मेडिसिन टेस्ट करना है, और एक ग्रुप ऑफ लोग रहेंगे जिनके ऊपर मेडिसिन टेस्ट नहीं करना है। तो ये दोनों ग्रुप्स जो है उनके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ कोरोना का इन्फेक्शन रहना चाहिए टू स्टार्ट विथ। ओनली देन आई कैन टेस्ट दिस मेडिसिन, राइट? अगर एक ग्रुप में कोरोना है ही नहीं और एक ग्रुप में कोरोना है, और ट्रीटमेंट मैंने किया जिनके पास कोरोना है ही नहीं, तो क्या मतलब हुआ ना मेडिसिन का? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि दोनों ग्रुप आर सिमिलर बिफोर द ट्रीटमेंट। ओके। जितने ज्यादा सिमिलर होंगे दोनों ग्रुप उतना अच्छा है मेरे लिए। अगर वो ओके। या अगर वो शुरुआत से ही डिफरेंट है दोनों ग्रुप्स, अगर मैं शुरुआत से ही 100 लोग ले रहा हूँ जिनको कोरोना नहीं है, और 100 लोग ले रहा हूँ जिनको कोरोना है, और फिर जिनको कोरोना है उनको दवाई नहीं दे रहा हूँ, और जिनको कोरोना नहीं है उनको दवाई दे रहा हूँ, वो तो था ही नहीं उनको कोरोना पहले से ही। उसके बाद में आप टेस्ट करके भी क्या निकलेगा? कोरोना ठीक हो गया ही निकलेगा उसका, क्योंकि दे नेवर हैड कोरोना इन द फर्स्ट प्लेस, करेक्ट? सो दे यस बोथ सर। ग्रुप्स हैव टू बी सिमिलर। दैट्स व्हाट दैट लास्ट पॉइंट इज सेइंग। और जितना ज्यादा सिमिलर रहेंगे उतना अच्छा है, ताकि एक्सपेरिमेंट के बाद में ट्रीटमेंट काम किया कि नहीं वो स्पॉट करना इजी हो जाता है। ओके सर, थैंक यू, गॉट इट। मोर क्वेश्चंस? यस। सर अगर समझो कंट्रोल ग्रुप और ट्रीटमेंट ग्रुप में अगर सिमिलर आए समझो अफेक्ट, तो कैसे करेंगे सर? इफेक्ट सिमिलर आया तो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। द पर तो टेस्ट डबल ब्लाइंडेड है ना, अगर दोनों को नहीं पता। नहीं, थर्ड पर्सन को पता है ना, ये कहीं तो डॉक्यूमेंट करके तो रखा जाएगा ना किसी, सिर्फ उनको अभी मेरा अगर मैं आपको बोलूँ कि व्हाट वुड बी अ गुड एग्जांपल? ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के पहले जो भी लोग ट्रीटमेंट ग्रुप में हैं और जो भी लोग कंट्रोल ग्रुप में हैं उनके नाम लिखे गए और एक बॉक्स में बंद कर दिए गए। ठीक है? रिसर्चर्स को नहीं पता वो बॉक्स के अंदर क्या है। रिसर्चर्स को सिर्फ पता है कि ये पेशेंट्स हैं, उनके पास 100 पेशेंट्स हैं, इसमें से कौन कौन से ग्रुप का नहीं पता। रिसर्चर्स आए, उन्होंने पेशेंट्स देखे और खुद के फाइंडिंग्स लिख दिए। उसके बाद में एक कोई थर्ड पर्सन आया, उसने वो बॉक्स ओपन किया और रिसर्चर के नोट्स देखे। फिर उनको पता चला ना कि कौन कौन से ग्रुप में था, और रिसर्चर के नोट्स में भी लिखा है उनका नाम। तब तो पता चल जाएगा ना कि दवाई काम की या नहीं की। नहीं समझा? सर फिर डबल ब्लाइंड स्टडी की क्यों कि अगर लिखना भी था क्योंकि तो? रिसर्चर्स का बायस था ना सबसे पहले। जब सिंगल ब्लाइंड करते हैं तो रिसर्चर्स का बायस क्या है? एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? लेट्स से एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है एबीसी, और दैट फार्मास्यूटिकल कंपनी वांट्स टू डू अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट कि उन्होंने एक नया दवाई निकाला है। लेट्स से कि उन्होंने एक नया जेल निकाला है। ठीक है? दैट जेल इज टू अप्लाई ऑन द बर्न्स। किसी कोई जल जाता है तो उसके बर्न्स के ऊपर वो जेल लगाओ, तो उनका कहना है कि 3 दिन में वो बर्न चला जाएगा या फिर बर्न ठीक हो जाएगा, उनका कहना है। उनको प्रूव कैसे करना पड़ेगा ये? वो लोग क्या करेंगे, 100 लोगों को बुलाएंगे। 100 लोगों को 100 ऐसे लोगों को बुलाएंगे जिनको बर्न हुआ हुआ है। ठीक है? उसमें से 50 लोगों को वो बोलेंगे कि आप कंट्रोल ग्रुप में, 50 लोगों को बोलेंगे कि आप ट्रीटमेंट ग्रुप में। और फिर क्योंकि मैं रिसर्चर हूँ, उसके बाद में मेरा काम है कि जो ट्रीटमेंट ग्रुप में उनको दवाई दे दूं, और जो कंट्रोल ग्रुप में उनको दवाई नहीं दूं। ओके? उसके बाद में मैं सबको 4 दिन के बाद बुलाता हूँ, राइट? मुझे पता है कि मैंने किसको ट्रीटमेंट ग्रुप में रखा है और किसको कंट्रोल ग्रुप में रखा है। मैं मेरे रिपोर्ट में लिख सकता हूँ ना कि जो ट्रीटमेंट ग्रुप में से अगर कोई बंदा आया तो मैं बोलता हूँ कि हाँ, क्योंकि इसने दवाई लगाई और इनकी दवाई लगाने के बाद में इनका बर्न कम हुआ। लेकिन अगर कंट्रोल ग्रुप से कोई आता है और मुझे पता है वो कंट्रोल ग्रुप का है, तो मैं झूठ बोल के लिख सकता हूँ ना रिपोर्ट पे दैट इनका बर्न ठीक नहीं हुआ है। दैट कैन बी रिटन, राइट? दैट कैन हैपन। दिस इज अ वेरी सिंपलिस्टिक एग्जांपल।
बिहाइंड द डोर्स क्या चल रहा है, यू नेवर नो दैट, करेक्ट? यस सर। इसीलिए इसीलिए यू हैव दिस डबल ब्लाइंडेड टेस्ट, जहां पे रिसर्चर को भी नहीं पता कि जो आदमी मेरे पास में आया है वो हैड ही अप्लाइड द बर्न मेडिसिन और हैड ही नॉट अप्लाइड। सिर्फ रिसर्चर को क्या करना है, उसका बर्न देख के बताना है 4 दिन के बाद में 30% बर्न रह गया है, 4 दिन के बाद में 20% बर्न रह गया है, एंड सो ऑन। ओके, उसके बाद में कोई थर्ड पार्टी रहेगी जो आके चेक करेगी कि रिसर्चर के नोट्स क्या थे। उसके बाद में उसको लेबल्स वो अटैच करेगी कि बोलेगा ठीक है ये रिसर्चर का नोट्स है जहां पे लिखा हुआ है 30% बर्न ठीक हुआ है आफ्टर 4 डेज। ओके, तो ये पेशेंट का नाम क्या है? ओके, सो पेशेंट का नाम है ए बी XYZ। XYZ पेशेंट का 30% बर्न कम हुआ है आफ्टर 4 डेज। उसके बाद में XYZ कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, वो थर्ड पार्टी को ही पता रहेगा, वो तीसरे बंदे को जो बाहर से एक्सपेरिमेंट देख रहा है ये उसको पता रहेगा। वो देखेगा ओके दिस XYZ बिलोंग्स टू अ ट्रीटमेंट ग्रुप, दैट मीन्स द मेडिसिन इज वर्किंग। बट रिसर्चर को नहीं पता था मेडिसिन लगाया नहीं लगाया। अंडरस्टूड? हाँ मतलब सर बायस के लिए यूज कर रहे हैं। करेक्ट। रिसर्च रिसर्च इज बायस्ड करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे केसेस है ऐसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो बायस्ड रिजल्ट्स पब्लिश करते हैं ओनली बिकॉज दे वांट टू सिक्योर फंडिंग्स, only because they want to keep the research going, only because they think that their research is very close, but in reality, it may be very far from it. There have been many cases. If you are aware, there was a tech company called as mm, Theranos or something. I don't remember the name exactly. Right, and that was a big case, and there were other cases also for the pharmaceutical companies where they were doing the frauds, basically trying to say something else, but under the hood, they're trying to do something else. And it's all about the business, right? I'm not saying कि उन लोगों ने गलत किया उन्होंने सही किया। It's about the way they want to run their business. अगर उनको लगता है कि ऐसे करने से उनके businesses आगे जाने वाले हैं, then they will do it. No matter how much pushback they'll get, they'll still do it. But there has to be a critical study of that. कि इन्होंने जो रिजल्ट्स पब्लिश किए ये कितने सही है। इसलिए आपके पास इंडिया में जो मेडिसिन अप्रूव होते हैं उसके लिए एक बॉडी होती है विच इज गोइंग टू अप्रूव द मेडिसिन। इन यूएस देयर इज CDC एंड ऑल दिस डिफरेंट प्लेसेस वेयर दे अप्रूव द मेडिसिन एंड ऑल। करेक्ट। नहीं तो कल कोई भी उठ के बोल देगा कि मेरी दवाई चल रही है और कोई यही नहीं है, उसके ऊपर ऑथोरिटी नहीं है चेक करने के लिए। नाउ this is all about the medical studies, this is all about the pharmaceutical companies now. Sorry, let me drink some water. लेकिन जरूरी नहीं है कि एक्सपेरिमेंट हमेशा फार्मास्यूटिकल कंपनीज या फिर मेडिसिन में ही हो। एक्सपेरिमेंट्स आप वेबसाइट्स पे भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप नेटफ्लिक्स हो और नेटफ्लिक्स पे आपको आपका काम है कि यूजर ने जितना ज्यादा टाइम स्पेंड किया नेटफ्लिक्स पे उतना अच्छा है। ऑलराइट, सो एक मूवी रहेगी, लेट्स से अभी रिसेंटली कोई मूवी आई थी, पठान मूवी आई थी, करेक्ट? सो पठान मूवी जो आई थी उसका जो पोस्टर था, दैट पोस्टर विल हैव वेरियस वेरिएशंस इन इट। एक पोस्टर पे मे बी दिल शो शाहरुख खान, फिर एक पोस्टर पे मे बी दिल शो couple of other peoples also, and then in one poster they'll just show the name of the movie. Okay, और उसके बाद में वो रैंडमली द पीपल हु आर लॉगिंग इनटू नेटफ्लिक्स उनको अलग अलग पोस्टर्स के डिजाइन दिखाएंगे। यूजर्स क्या करेंगे? they'll go and click on that movie. Now the experiment here is by showing one or the other poster, is the view rate going to increase or the number of people who are watching the movie increases?
does the number of people who watch the movie increase if I show a poster where there is a photo on it, versus what happens when I show a poster where there is no Shah Rukh's photo, there is some other people's photo, or there's just name of the movie. तो इन दोनों के केस में कितने लोगों ने क्लिक किया और कितने लोगों ने मूवी देखा, दैट इज द मेट्रिक आई वांट टू चेक। वो मेट्रिक मुझे बढ़ाना है। अगर मुझे पता चलता है कि शाहरुख का पोस्टर फोटो दिखाने से ज्यादा लोग मूवी देखने वाले हैं, देन नेक्स्ट टाइम आई स्टार्ट शोइंग शाहरुख पोस्टर ऑन मोस्ट ऑफ द पीपल्स स्क्रीन। तो दैट इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ अ वेबसाइट जो रन किए जाते हैं बहुत सारे। वन मोर इज क्लिक थ्रू रेट बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वेबसाइट है और आपके वेबसाइट के दो वर्जन्स बनाओगे आप। एक एक फर्स्ट वर्जन में यू विल मे बी शो अ बिग बैनर और कुछ तो फ्लैश हो रहा है वेबसाइट पे, और दूसरा वर्जन रहेगा आपका वेबसाइट का जहाँ पे सिर्फ एक बैनर है और कुछ मैसेज नहीं है, फ्लैशिंग, एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम। ओनली डिफरेंस इज एक वेबसाइट पे फ्लैशिंग कुछ तो दिखा रहा है, ब्लिंक हो रहा है बार बार, दैट क्लिक मी क्लिक मी क्लिक मी क्लिक मी। और एक वेबसाइट पे कुछ नहीं दिखा रहे हो, जस्ट कीप इट एज इट इज। इफ द यूजर क्लिक्स ही क्लिक्स, इफ द यूजर क्लिक्स डज नॉट क्लिक इट डज नॉट क्लिक। ठीक है। तो दो वर्जन्स मैंने अलग अलग यूजर्स को दिखाए, उसके बाद में कितना क्लिक थ्रू रेट मिल रहा है मुझे वो काउंट किया मैंने। अगर मेरा क्लिक थ्रू रेट जब मैं ब्लिंक करता हूं तब ज्यादा दिखता है, दैट मीन्स जब जो वर्जन है मेरा, जिस वर्जन में बटन ब्लिंक हो रहा है, वो वर्जन को ज्यादा लोगों को दिखाना चाहिए मुझे अगर क्लिक थ्रू रेट बढ़ाना है तो मेरा। दैट इज वन मोर एग्जांपल ऑफ अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। इस केस में हम लोग ने क्या किया, हमारा ट्रैफिक आया और ट्रैफिक को हमने रैंडमली असाइन कर दिया। रैंडमली असाइन कर दिया एक ग्रुप को जिनको हमने ब्लिंकिंग वाला दिखाया और एक ग्रुप को जिनको हमने ब्लिंकिंग वाला नहीं दिखाया। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स नेटफ्लिक्स करती है एवरी सेकेंड एवरी मिनट। अगर आप लॉग इन करते हो तो आपको अलग पोस्टर दिखेगा, अगर आपका दोस्त लॉग इन करता है तो उनको अलग पोस्टर दिखेगा, सेम मूवी के अलग अलग पोस्टर्स दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि दे आर रनिंग एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट कि कौन से पोस्टर पे ज्यादा क्लिक्स मिलने वाले हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जो नया यूजर आए तो उसको वो वाला पोस्टर दिखाया जाए। समझ में आ रहा है आपको हाउ दिस एक्सपेरिमेंट्स कैन बी used in the context of data science or in the context of websites? Yes, no. Yes, sir. Okay. So that is what is basically hypothesis testing. ठीक है। So hypothesis testing में क्या होता है, आपके दो hypothesis होते हैं। hypothesis मतलब दो statements होते हैं बेसिकली। सबसे पहला होता है null hypothesis और दूसरा होता है alternative hypothesis। ओके। सो null hypothesis में आप क्या बोलते हो कि दैट कंट्रोल ग्रुप और ट्रीटमेंट ग्रुप दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, दैट इज अ नल हाइपोथेसिस। कंट्रोल ग्रुप और ट्रीटमेंट ग्रुप में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आप बोलोगे कि दोनों में डिफरेंस है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के केस में देखते हैं हम लोग। आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में से कुछ लोग हैं शायद से हमारे बैच में। सो क्या हो रहा है, एक प्लांट है, उस प्लांट पे कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। लेट्स से दिस इज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ किसका नाम, मे बी सम क्लोथ्स। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ अ क्लोथिंग ब्रांड और समथिंग लाइक दैट। और उन्होंने क्या बोला कि एक नई प्रोसेस है जिसमें आप जो आपका फैब्रिक कट करने का प्रोसेस है वो चेंज करोगे। आप पहले मे बी कोई सीजर्स टाइप मशीन यूज कर रहे थे, उसके जगह पे एक नया कटिंग मेथड आया है। अगर आप वो यूज करोगे तो आपके जो कट्स रहेंगे वो ज्यादा प्रिसाइज रहेंगे। ओके, आपके कट्स ज्यादा प्रिसाइज रहेंगे और आपका वेस्टेज कम होगा।
आपको टेस्ट करना है, इज दिस रियली ट्रू और नॉट। तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले नल हाइपोथेसिस बोलोगे कि एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्टिव विथ और विदाउट द न्यू टेक्नोलॉजी आर इक्वल, दैट इज योर नल हाइपोथेसिस। अगर मुझे पहले दिन में 10 डिफेक्टिव क्लोथ्स मिलते थे with the old technology, then with the new technology also I'll get the same 10 defective clothes. ठीक है, that is my null hypothesis. Averages is same regardless of which group they belong to. Alternative hypothesis क्या बोलता है, that they are not same. हमारा टास्क क्या है, our task is to check this hypothesis, कौन सा hypothesis सही हो रहा है, is the null hypothesis right or is the alternative hypothesis right. अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस करेक्ट होता है तो इसका मतलब नई मेथड से आपका वेस्टेज कम हो रहा है एंड यू शुड स्विच टू द न्यू अप्रोच। अगर नल हाइपोथेसिस सही होता है, दैट मींस देयर इज नो रीजन टू स्विच टू द न्यू मेथड बिकॉज ओल्ड मेथड से भी उतना ही वेस्टेज हो रहा है और नए मेथड से भी उतना ही वेस्टेज हो रहा है, देन व्हाई डू यू वांट टू स्विच, स्टिक टू योर सेम अप्रोच, यू आर गुड। मार्केटिंग में एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक डिजिटल एडवर्टाइजिंग की कंपनी है और उनको एक कोई तो एड कैंपेन चलाना है और उनको पता चल रहा है कि एक पर्टिकुलर तरह का एड हमने क्रिएट किया तो हमारा सेल्स राइज होने वाला है। तो वो क्या कर सकते हैं, दे कैन डू अ नल हाइपोथेसिस हियर फर्स्ट। तो वो लोग नल हाइपोथेसिस में लिखेंगे दैट डूइंग दिस पर्टिकुलर एड कैंपेन विद द न्यू एडवर्टाइजमेंट इज नॉट गोइंग टू राइज द सेल्स। ओके, मतलब ट्रीटमेंट ग्रुप और आपका कंट्रोल ग्रुप दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दैट इज द नल हाइपोथेसिस। Alternative hypothesis says that when I use this new advertising approach in my advertising campaign, the number of sales are going to increase. That is my alternative hypothesis. So एक रहेगा null hypothesis और एक रहेगा alternative hypothesis always. क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या रहेगा, अगर कोई मेडिसिन लेता है तो null hypothesis रहेगा that by taking this medicine there is not going to be any change in your blood pressure. ब्लड प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा इवन इफ यू टेक दिस मेडिसिन और इफ यू डोंट टेक दिस मेडिसिन। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोलेगा, इफ यू टेक दिस मेडिसिन देन योर ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज और योर ब्लड प्रेशर विल डिक्रीज, ब्लड प्रेशर सेम नहीं रहेगा दोनों ग्रुप का। दैट इज व्हाट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज। कैन एनीवन गिव मी एन एग्जांपल ऑफ नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस of that you may have seen in the real life or that you may want to consider doing? आपको एक एक्सपेरिमेंट बनाना है, जिस एक्सपेरिमेंट में आपको एक नल हाइपोथेसिस बताना है कि दिस कंट्रोल ग्रुप is going to be similar to your treatment group. Alternative में बोलना है that this control group is not similar to your treatment group. Okay, let's take this example. World Cup चल रहा है अभी. So experiment is I want to check if changing the batting order will increase the score of the team. Alright. So ये मुझे hypothesis check करना है. अगर मुझे hypothesis test करना है तो मेरा null hypothesis रहेगा that changing the batting order is not going to increase the score. और मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रहेगा that changing the batting order is going to increase the score. So that is how you create your null and alternative hypothesis. Any other example that you can give? You can tell what is the hypothesis that you want to test. After that, tell me what is the null hypothesis and what is the alternative hypothesis. Yes. सर हम सर हम स्टूडेंट का ले सकते हैं, लाइक कोई स्टूडेंट मैथ्स में वीक हो तो वो हम अगर उसको लिए स्पेशल क्लास लगाएंगे लाइक ट्यूशन, तो हम देख सकते हैं ना कि
ट्यूशन लगाने से पहले क्या मार्क्स थे एंड बाद में क्या मार्क्स आ रहे हैं। करेक्ट। उस केस में आपका नल हाइपोथेसिस क्या रहेगा? नल मतलब हम चेक करेंगे ना कि पहले कितने मार्क्स थे। अभी भी वही है क्या? अगर सेम ही होंगे तो नल हाइपोथेसिस आएगा। एंड अल्टरनेटिव में आएगा कि अगर पहले से अच्छा है तो वो अल्टरनेटिव आएगा। करेक्ट। तो इन दिस केस द नल हाइपोथेसिस इज ट्यूशन लगाने से आपका स्कोर नहीं बढ़ने वाला है, दैट इज द नल हाइपोथेसिस। ओके, यस सर। द नल हाइपोथेसिस इज ट्यूशन लगाने से आपका स्कोर नहीं बढ़ने वाला है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज स्टूडेंट ट्यूशन जो लगाते हैं उनका स्कोर बढ़ता है, दैट इज द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये सिर्फ हाइपोथेसिस, ये इसको टेस्ट करना है हाइपोथेसिस को। इसको टेस्ट जब करने की बात आती है तब डेटा कलेक्शन और वो सब आगे आएगा। सबसे पहले तो हाइपोथेसिस आपको लिखना पड़ेगा ना पेपर पे कि ये हाइपोथेसिस मुझे टेस्ट करना है। एक ये एग्रीकल्चर के केस में दिखा है यहाँ पे एग्जांपल। एक नया फर्टिलाइजर आया मार्केट में और आपको हाइपोथेसिस चेक करना है। यू वांट टू टेस्ट इफ दिस न्यू फर्टिलाइजर इज increases the growth or not। तो आपका नल हाइपोथेसिस रहेगा that this new fertilizer is not going to increase the growth of the plant। your alternative hypothesis will be that this new fertilizer will influence the growth of your plant। understood? सर अगर कम हुआ तो? कम हुआ तो भी it is influencing, right? बेसिकली कम हुआ या फिर ज्यादा हुआ, तो वो इन्फ्लुएंस तो हो रहा है। हाइपोथेसिस इन दोनों में आएगा क्या? करेक्ट, दैट इज द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगेन। नल हाइपोथेसिस में बोलना है कि दोनों सेम है, जिनको फर्टिलाइजर दिया और जिनको फर्टिलाइजर नहीं दिया उन दोनों के बीच में उन दोनों का ग्रोथ सिमिलर है, दैट इज माई नल। लेकिन अल्टरनेटिव है उन दोनों का ग्रोथ सिमिलर नहीं है। फिर वो नहीं है तो दोनों भी हो सकता है ना, या तो कम हो सकता है या फिर बढ़ ज्यादा हो सकता है। तो कम ज्यादा दोनों अल्टरनेटिव में आ जाता है, इक्वल आपका नल में जाता है। थिंक हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे तो जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, बिफोर आई जंप टू दिस लेट मी जस्ट चेक हियर। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको ये समझ में आए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो जस्ट लेट मी नो, आई ट्राई टू एक्सप्लेन थ्रू अदर वे। ओके, आप लोग एक एक्सपेरिमेंट बताओ। आई टेल यू व्हाट द नल हाइपोथेसिस एंड द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विल बी। You can say that you want to perform this particular experiment। सर अगर समझो कोई टीचर है तो उसका जो टीचिंग मेथड है तो वो स्टूडेंट्स के मार्क्स पे कैसे अफेक्ट करेगा? तो Okay, उसमें so you have an hypothesis that the teaching method affects the student scores। That is the hypothesis you want to check। So null hypothesis will be teaching method does not affect the student score, that is the null hypothesis। Alternative hypothesis will be teaching method will change or will affect the student score। One more example, one more experiment, anyone else? All right, let's go हेलो। back to the yes। हाँ सर, लेट्स से वो कॉफी वाला एग्जांपल कि मतलब स्टूडेंट्स कॉफी पीने के बाद अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं या फिर नहीं। Mhm. Okay, so you want to do the experiment where you want to check if giving coffee to the student improves their uh, concentration level। If you want to test this hypothesis, your null hypothesis will be
Giving the coffee to the students is not going to change their concentration level. That is the null hypothesis. That is, there is no change. All conditions are same, even the results are also same. Alternative hypothesis is giving coffee will change the concentration level of the students. जब मैं change बोलता हूँ, it will again increase or it will reduce. दोनों साइड में जा सकता है वो. Okay. Mhm. Okay, I will tell you an experiment. You guys tell me what is the null hypothesis and what is the alternative hypothesis. Okay. So the experiment is, um, if a person runs 1 mile every day, then his weight, then he will lose weight in 1 week. That is my experiment I want to test. What would the null hypothesis be here? सर क्वेश्चन रिपीट करो जरा. Okay, so question is that hypothesis is running 1 mile every day for 7 days reduces the weight. सेम Okay, वेट रहेगा तो नल आएगा. so पर null डे जितना भी hypothesis. Hmm? पर डे रन करने के बाद वेट भी रिड्यूस नहीं हो, वो नल हाइपोथेसिस में जाएगा. Okay, और and अगर alternative hypothesis will be जब बढ़ेगा या फिर घटेगा. correct. So the null hypothesis here is that running every day will have no effect on the weight. That is the null hypothesis. Alternative hypothesis is running every day will have effect on the weight. Okay. All right. One more experiment. Mm, okay. Keeping the street lights on during the night. Sorry, not installing street lights will reduce the crime rate. Installing street lights will reduce the crime rate. This is the experiment I want to run, or this is the hypothesis I want to test. Null hypothesis क्या होगा? अगर स्ट्रीट लाइट लगाने से उतनी क्राइम रहे तो नल hypothesis. और अगर Not reduce. अगर बढ़ या कम हुए Correct. तो अल्टरनेटिव है. Yes. So the null hypothesis installing street light does not change the crime rate. Alternative hypothesis is installing street lights will change the crime rate. Okay. Abhi, someone give an example from you. Someone give an example of experiment, and from you, someone give an example. What is the null and what is the alternative hypothesis of that? So anyone can give the experiment first. Experiment बताओ कोई एक. Hello. Yes. Sir, by increasing the percentage of ethanol in the petrol to increase the average. Okay. You want to test this experiment. What would the null hypothesis be? Someone? नो चेंज. That is by increasing Right. the ethanol in the gas or increasing the ethanol in your petrol, there will be no change in the efficiency of your uh, engine. Alternative hypothesis क्या रहेगा? Either improve or decrease the performance. Yes, the performance changes if the ethanol level changes in your petrol.
we see the ad of Surf Excel and all of this, right? Where they have two groups. One group is basically where they use Sadharan detergent, and then there's the other group where they use Surf Excel or the other detergent जिसका ad चल रहा है. Okay, that basically is an experiment, right? दो दो कपड़ा लिया उन्होंने, एक कपड़े पे उन्होंने कोई तो दूसरा डिटर्जेंट लगाया और दूसरे पे उनको जो सेल करना है वो डिटर्जेंट लगाया, एंड दे से दैट after doing this experiment you can see that the one which was using our detergent, उनका those clothes are cleaner than the one who is not using the our detergent, right? So that is again example of hypothesis testing, or that is again an example of an experiment that is happening in front of you in the advertisement. Okay, so you see the hypothesis testing, you see experiments everywhere around you. Only thing is you may not know that these are experiments, or you may not know that these are called hypotheses, or these are called as hypothesis testings. ओके, सो नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें हमें बस इतना बोलना है कि नथिंग चेंजेस इवन इन द कंट्रोल ग्रुप एंड द ट्रीटमेंट ग्रुप, दोनों में सेम ही रिजल्ट मिलने वाला है आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सपेरिमेंट. दैट इज द नल हाइपोथेसिस. अगर मैं मेरे रिग्रेशन के एग्जांपल में जाऊं, हमने रिग्रेशन मॉडल्स पढ़े हैं, ठीक है? रिग्रेशन मॉडल के एग्जांपल में जाऊं तो रिग्रेशन मॉडल का काम क्या होता है? एक लाइन का इक्वेशन निकालना है मुझे. Okay, the task of regression model is to create a line equation, y is equal to mx plus some c. Okay, now if the hypothesis here is that there is a linear relationship between your y and x. Hypothesis क्या है? There is a linear relationship between x and y. What would the null hypothesis be here? हमारे रिग्रेशन मॉडलिंग के केस में हम लोग बोलते हैं दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन x and y, where y is equal to mx plus c. That is the hypothesis I want to test right now. So what would the null hypothesis be? एक्स और वाई में रिलेशन नहीं है लिनियर. x और y में रिलेशनशिप नहीं है. हाँ. अगर x और y में रिलेशनशिप नहीं है, इसका मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c जो है, मतलब स्लोप इज जीरो. करेक्ट? y इज इक्वल टू mx प्लस c है ना आपका इक्वेशन. Yeah. मतलब योर स्लोप इज जीरो और योर स्लोप इज अननोन. आपका स्लोप जीरो ही है इनफैक्ट. ठीक है, मतलब देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x. दैट इज योर नल हाइपोथेसिस. आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है? रिलेशन होगा लिनियर. Alternative hypothesis is relation is present, which means m is not equal to 0. Correct? That is your alternative hypothesis. इसीलिए हम लोग जब लीनियर रिग्रेशन कर रहे थे, तब हमें जब इक्वेशन मिलता था, अगर आपने कोई स्टैट्स का मॉडल रन करके उसके बाद में उसके ये देखे होंगे समरी, तो वहां पे आपको p वैल्यू दिखेगा. करेक्ट? या फिर वहां पे आपको एक वैल्यू दिखाई जाएगी विच इज just a value used to either reject the null hypothesis or fail to reject the null hypothesis. Okay, अगर मैं null hypothesis को reject करता हूं, okay, again, अगर मैं null hypothesis को reject करता हूं, इसका मतलब क्या होता है? If I reject that there is no relationship between x and y, इसका मतलब क्या होता है? रिग्रेशन के केस में if I reject that there is no relationship between x and y, इसका मतलब क्या होता है? There is a relationship. There is a relationship. Okay, just a twist there actually. If I reject that there is no relationship between x and y, this is just an evidence that there might be a relationship between x and y. Okay, that there might be a relationship between x and y. I'm rejecting that there is no relationship between x and y because I don't have enough evidence to prove that there is no relationship.
that doesn't mean that I'm accepting the alternative hypothesis. So in reality, you never accept the alternative hypothesis. You always reject the null hypothesis, or you fail to reject the null hypothesis. Okay. Again, be very careful with the words when you do the hypothesis testing or when you explain that in the interview too. You never accept the alternative hypothesis. You always reject the null hypothesis, or you fail to reject the null hypothesis. Going back to this example, fertilizers का. Okay, so plant का growth 20 inches या फिर plant का growth influence होता है. Let's just say that. Okay, if I reject the null hypothesis, इसका मतलब क्या होता है? If I reject the null hypothesis in this example of the fertilizers, what does that mean? If I reject this, that means it's a evidence that this might be true. Alternative hypothesis might be true that the fertilizer may grow, may lead to the faster growth. Okay. If I fail to reject the null hypothesis, what does that mean? If I fail to reject the null hypothesis, what does that mean? It's an alternative hypothesis. I'm failing to reject the null hypothesis. इसका मतलब null hypothesis true है ना? We accept null hypothesis. Right? We accept the null hypothesis. Okay, that's why I'm saying you only have two conditions here. Condition number one is you reject the null hypothesis, or you fail to reject the null hypothesis. आप कभी भी accept नहीं करोगे alternative hypothesis को. Okay, I'm saying this again and again because students make the same mistake in the interviews. You never accept the alternative hypothesis. Alternative hypothesis को कभी भी accept नहीं करना है. हमेशा क्या बोलना है? The experiment was conducted and we failed to reject the null hypothesis, or we failed, or we, और क्या? Fail to reject. We reject the alternative hypothesis. Reject the hypothesis या फिर fail to reject the null hypothesis. That's it. सिर्फ null hypothesis के साथ ही बोलना है. Never say that we accept the alternative hypothesis. Now, why do I say that? Is because ये जो alternative hypothesis है, इसके सारे variables capture करना is very difficult here. The fertilizer result in the fast, अभी ये fertilizer की वजह से faster growth हुआ. Okay, but there could be other factors that were not counted. There could be other factors that were not counted. अगर मैंने वो भी काउंट कर पाता मैं ठीक से, तो मे बी दिस कुड हैव बीन फॉल्स, or maybe this could have been accepted, right? So that's why there are so many variables that cannot be captured. That's why you cannot ever accept the alternative hypothesis. You only have to work with the null hypothesis, and you have to either reject or you have to fail to reject the null hypothesis, right? I think as we go along and we see more examples, it will become more and more clear, but just keep that in mind. Okay, now before I run this, I would like to first go to a code, and after that we can come back here. We're running over time right now, but एक छोटा सा देख लेते हैं कोड, उसके बाद में हम लोग विल स्टॉप. यस, क्वेश्चन. सर ये मशीन लर्निंग में आता है या डीप लर्निंग में हाइपोथेसिस? ये डेटा साइंस में आता है, प्योर डेटा साइंस. ओके ओके सर. ऑलराइट, सो हमें एक टेस्ट करना है, और हमें टेस्ट क्या करना है कि
एक सैंपल डेटा है यहाँ पे, स्टूडेंट्स का स्कोर है। ओके, एक स्टूडेंट्स का स्कोर है हमारे पास यहाँ पे, और this is the score of full population. Let me just check here. Actually, we're running over time. I might have to stop here. Uh, okay, let's just go back here. I'll have to stop here because I won't be able to do for next 15 minutes. So, uske pehle, before I leave, anyone have any questions? I'll just go slide by slide slowly. किसी को कोई भी questions होगा, let me know. ठीक है? धीरे धीरे मैं जाता हूँ मैं अभी स्लाइड बाय स्लाइड। हाइपोथेसिस टेस्टिंग डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क का पार्ट कंसीडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? Data governance. Actually, hypothesis testing would be more of an experimentation for that field. So I won't call it data governance the part. हम्म, So it will Okay. be yeah, hypothesis testing, experiments, हम्म, surveys. All of those are different domain altogether for data science person. Okay. Surveys जो आपको send out करते हो बाहर, questions वगैरह जो surveys में होते हैं, that also comes under these experiments only or this hypothesis some way or other. टेस्टिंग में आता है। ओके। सैम्पलिंग, और आप जब रैंडमाइज सैम्पलिंग करते हो, आपका जो डेटा स्प्लिटिंग होता है, दैट इज आल्सो a sampling technique, right? That sampling technique also is useful in these experiments and all of that. We'll learn about sampling and we'll learn about bias ओके। and all of that. Yeah. ओके। Yeah, it comes under inferential statistics. That is, you are trying to infer something. हेलो। Yes, हाँ सर, जो हमारा कंक्लूजन जो आएगा वो बस नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट और फेल टू रिजेक्ट आएगा ना? मतलब correct. ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस का कुछ नहीं है, मतलब एक्सेप्ट रिजेक्ट फेल टू रिजेक्ट नहीं, ऐसा कुछ? नहीं, नहीं, नेवर नेवर। अल्टरनेट हाइपोथेसिस को कभी एक्सेप्ट नहीं करना है, कभी रिजेक्ट नहीं करना है, कभी फेल टू रिजेक्ट नहीं करना है। सिर्फ नल हाइपोथेसिस को या तो रिजेक्ट करना है या फिर फेल टू रिजेक्ट करना है। ओके। Alright, no questions? Okay, some of this might be really new, especially people who have never seen any statistics ka background and all of that. It will feel a little counterintuitive because we are not used to think about experiments in these lines. But हम लोग दो तीन experiments देखेंगे, so it will become more and more clear. If you want to read ahead, you can read chapter number 11 from your ISLP textbook. But the content that I'm teaching is not from those chapters. Um, but it has good amount of details.
Sorry, chapter number 13, multiple testing. Language will be a little difficult because I too try to read this one. The language is little difficult. Next time we are going to talk about this, so it's okay. You can ignore that part. Try to read it, chapter number 13. जितना समझ में आता था ठीक है, नहीं समझ में आया तो you can ask me questions in the next session. Okay. I had to give you this topics. Completely forgot about that. Okay, let's do one thing. Uh, I'll send out the topics on the Discord channel. I sorry about that, case. I had to send it today, but मैं Discord channel पे भेज देता हूँ आपको, so that on Thursday we can decide on who is going to pick what. I'll send the topic detail. उसके नीचे मैं description भी दूंगा उसका, and then on Thursday we'll decide कि कौन कौन सा topic लेने वाला है, कौन सा group. Okay.